Good morning, student. Today we are going to discuss about the states of matter, deleted portion, that is liquefaction of gases and critical temperature. Okay, beta, this is a deleted portion this year, but even though I think that we should discuss about it, and so I'm going to discuss about this liquefaction of gases. तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे और जैसा हम कह सकते हैं कि liquefaction of gas that can take place when intermolecular forces of attraction become so high that they bind the gas molecules together to form the liquid state. ठीक है बच्चे, कहने का मतलब ये है कि intermolecular force of attraction in between molecules that can be increased either by increasing a pressure, ठीक है, so that कि molecules क्या हो जाएं, they come closer together, or another one condition that we can bring closer to them by cooling the gas so that the kinetic energy of molecules decreases and they become slower. So overall हम ये कह सकते हैं कि गैस जो है that can be liquefied either by cooling or by application of pressure or the combined effect of both. ठीक है, जैसे कि गैसेस हैं लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड etc. These could be liquefied by any one of the method which we mention, or any of the method either by cooling or by increasing the pressure, and we can say that the effect of temperature on the liquefaction of gases that is found to be very important. As higher the temperature of the gas, more difficult it is to liquefy it, and higher is the pressure required to liquefy the gas. ठीक है, so generally we observed that gases like hydrogen, helium, oxygen, nitrogen etc. could not be liquefied at room temperature by application of pressure alone. Whereas how much or however we increase the pressure. So at one time these gases were called the permanent gases. Initially बोलते थे हम इनको, but nowadays each one of these gases could be liquefied. कैसे? By lowering the temperature as well as by increasing the pressure. ठीक है, तो दोनों कंडीशंस अगर साथ लगाई जाएंगी तो इन गैसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, हम इनको साथ में लिक्विफाई कर सकते हैं. सो ऐसा करने के लिए वी नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अबव विच the gas cannot be liquefied, and that temperature is known as a critical temperature. So from here we can say that critical temperature is the temperature above which the gas cannot be liquefied. However, high pressure may be applied on the gas. माने आप कितना भी प्रेशर लगा लो, लेकिन इस टेम्परेचर से ऊपर गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं. And similarly, the pressure which is required to liquefy the gas at the critical temperature is called critical pressure. उसे हम क्या कहते हैं? Critical pressure कहते हैं. Whereas the volume which is occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is known as the critical volume, and all these three collectively are known as critical constants of the gas, which is represented by Tc, critical temperature, Pc, critical pressure, and Vc, critical volume. Is it okay, beta, to everyone? Now I am going to discuss about the Andrews experiments on critical phenomena. ठीक है? Okay, so Andrews experiments on critical phenomena. Better please just have a look on this figure. It is given in your NCERT book and we are going to refer this figure also here. So सबसे पहले Andrews ने 1861 में
क्या किया था, क्रिटिकल फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था बाय यूजिंग CO2 गैस. सो बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स आइसोथर्म मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया था. और उन्होंने क्या किया, ही स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. यहां आप देख सकते हैं प्रेशर के इफेक्ट को एट ऑन डिफरेंट वॉल्यूम्स एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स. ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम्स थे और डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे स्टडी किया. जिस प्लॉट को उन्होंने इससे ऑब्टेन किया दैट इज नोन एज आइसोथर्म. और कुछ आइसोथर्म्स यहां पर दिख रहे हैं, जैसे कि लोएस्ट टेम्परेचर विच इज गिवन एट 13.1 डिग्री सेल्सियस. तो ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था और इस पे लो प्रेशर में गैस CO2 थी. एंड दैट्स व्हाई दैट CO2 एग्जिस्ट एज अ गैस एज शोन एट द पॉइंट A. यहां पर जो दिख रहा है आपको. एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर आपकी गैसियस फॉर्म में CO2 आ रही है. धीरे धीरे एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रेशर इंक्रीज किया. ठीक है, सो एंड द वी इंक्रीज द प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस. धीरे धीरे उसका वॉल्यूम क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा अलोंग द कर्व AB. ठीक है, AB कर्व पे ये देखिए ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है. AB उस पर आपका ये हो गया, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. एंड एट पॉइंट B लिक्विफैक्शन ऑफ गैस स्टार्ट. मीन्स यहां पर CO2 गैस का लिक्विफैक्शन क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था. एंड हेंस वॉल्यूम डिक्रीजेस रैपिडली अलोंग BC. और यहां पर वो क्या करने लगा, BC पे आपका वॉल्यूम क्या कर गया, रैपिडली डिक्रीज कर गया. क्या चीज डिक्रीज हुई है, वॉल्यूम. वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ बहुत जल्दी से. ठीक है, एंड व्हाई दिस वॉल्यूम डिक्रीजेस रैपिडली, बिकॉज लिक्विड हैज मच लेस वॉल्यूम देन द गैस. गैस तो ज्यादा वॉल्यूम लेती है और लिक्विड जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा. वेयर एज एट पॉइंट C इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, लिक्विफैक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका था बच्चे. ठीक है, और अब यहां पर से हमने अगर इंक्रीज प्रेशर में किया भी, ये हमने थोड़ा सा और प्रेशर P3 यहां तक गए हैं, प्रेशर इंक्रीज भी किया, बट इट हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन वॉल्यूम. व्हाई, बिकॉज लिक्विड्स आर लेस या वेरी लेस compressible. And hence a steep curve CD is achieved. ठीक है, तो एक हमारा क्या बना, एक ये steep curve आ गया CD वाला. ठीक है, so this curve is formed here CD. और at this if we increase the pressure temperature, then horizontal portion becomes smaller and smaller at 30.98 degree Celsius. ये वहां पर. ठीक है, and it is reduced to a point P. और ये हमारा धीरे धीरे क्या हो गया, आपका 30.98 डिग्री पर आपका गैस जो थी that cannot be liquefied at all. However, high pressure may be applied. तो यहां पर अब कितना मर्जी तुम प्रेशर लगा लो, बट इससे ऊपर अब आपकी गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होगी. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर. तो इसे हमने क्या कहा, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा. जो प्रेशर इस टाइम पर था उसे हमने क्रिटिकल प्रेशर कहा, और जो वॉल्यूम इससे कॉरेस्पॉन्ड था वो हमारा क्या बना बेटा, क्रिटिकल वॉल्यूम बना. So this is all about the isotherms of carbon dioxide, which was first observed by the Andrews in his experiment. And basically here he just say that all gases on isothermal compression show the same behavior which is shown by the CO2. ठीक है, तो CO2 जिस तरीके का बिहेवियर दिखाता है, सारी गैसेस ही इसी तरीके का बिहेवियर दिखाती हैं और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के वो अपना लिक्विफैक्शन रोक देती हैं. ठीक है, सो इट मे बी पॉसिबल दैट वी कैन चेंज अ गैस इनटू अ लिक्विड और लिक्विड इनटू अ गैस बाय अ प्रोसेस which is always present as a single phase. ठीक है,
और इस फेज के अंदर भी हमने वही चीज देखी कि एक ही फेज में हमने क्या कर दिया, गैस को लिक्विड या लिक्विड से गैस में हम कंप्रेस करके एट कांस्टेंट टेम्परेचर by increasing at different temperatures by at constant temperature with pressure, high pressure, we can change its state. Okay, so this is all about your liquefaction of gases, and now we move to the properties of liquids, और हम अब आ जाते हैं liquids के ऊपर. ठीक है, so this is the another one property, as all of you as we know कि liquid जो है that is a state of a matter in which has a definite volume but no definite shape, incompressibility, diffusion, fluidity, evaporation, surface tension, etc. And we can also explain these all the properties which I already discussed with you on the basis of kinetic molecular theory of liquids, and basic postulates of liquids are क्या क्या होता है कि liquid made up of molecule होता है, molecules of liquid जो होते हैं they are quite close together होते हैं molecules, और in a constant rapid motion में होते हैं. Average kinetic energy of molecules of liquid that is directly proportional to their absolute temperature. अगर हम properties of liquids की बात करें तो ये आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं. That is what its shape. Liquids have no definite shape. Volume, liquids have a definite volume. Density, liquids have higher density than gases. And if we are talking about compressibility, so liquids are much less compressible than gases, or diffusion. So liquid diffuse like gases, but the diffusion is very slower comparatively to the gases. ठीक है. Next, if we are talking about the another one term, that is vapor pressure. अच्छा, वेपर प्रेशर क्या चीज होती है? सिंपली अगर मैंने कहा कि एक आपने क्या किया है, एक इवैक्यूएटेड वेसल लिया है और उसको मैनोमीटर से आपने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, कोई एक लिक्विड ले लिया उसके अंदर, और अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्या होंगे, कॉन्स्टेंटली इन मोशन होंगे, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड्स के साथ मूव कर रहे होंगे. सो ऑब्वियसली अगर वो डिफरेंट स्पीड से साथ कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एनर्जी ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स मे बी सो हाई दैट दे मे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और जिसकी वजह से वो क्या कर जाएंगे, लिक्विड स्टेट को छोड़ देंगे, एंड दे कम इन द स्पेस अबव द लिक्विड. जहां पर आपका लिक्विड है उससे ऊपर वाले स्पेस पे आ जाएंगे. कौन से? वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इवेपोरेशन कहते हैं. एज ग्रेजुअली टाइम पास करता जाएगा तो ज्यादातर मॉलिक्यूल जो होंगे लिक्विड के, वो क्या होंगे, वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ेंगे और कहाँ हो जाएंगे, दे कम इन द स्पेस अबव द liquid, and the molecules thus present above the liquid are called vapors. और धीरे धीरे वो क्या बन जाएंगे बच्चे? वो vapors बन जाएंगे. इस phenomena को, that the molecules in the vapor phase are also constantly moving, और जब वो vapors बन के आपस में स्ट्राइक करेंगे तो वो वापस क्या होने लग जाएंगे, कुछ उनमें से वापस लिक्विड की सरफेस में आ जाएंगे और रिकैप्चर्ड हो जाएंगे लिक्विड के थ्रू, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं. और धीरे धीरे इवेपोरेशन में ही कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे वापस लिक्विड के अंदर, और उसे कहेंगे कंडेंसेशन. तो ये है हमारा रेट और ये है हमारा टाइम. क्लियर हो गया? सो फ्रॉम हेयर वी कैन से सिंपली कि जो प्रेशर आपका लिक्विड के ऊपर एनी टेम्परेचर पर
जो प्रेशर वेपर्स उस टाइम उस लिक्विड के ऊपर जो प्रेजेंट रहते हैं वो एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के ऊपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड आर नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now we move to the another one important characteristic of liquid, and that is known as surface tension. Now beta surface tension, it is also a characteristic property होती है liquid की, which arises due to the fact that molecules of liquid at the surface are in different situations. कोई अगर मैं बात करती हूँ इस बीकर में कोई एक मॉलिक्यूल है, तो कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कहीं भी मूव कर सकते हैं वो, है ना? तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसलिए जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मॉलिक्यूल के ऊपर लगेगा, लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल पे, दैट नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। वेयर एज जो मॉलिक्यूल सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे उस पे इस डायरेक्शन का फोर्स है, इधर का है, इधर का है, इधर का है, इधर का है, बट ठीक है, लेकिन वो वाला जो ये वाला लिक्विड है, ये मॉलिक्यूल जो है, इसके ऊपर जो आ रहा है बच्चे, उस पे जो क्या है, मॉलिक्यूल विच इज लाइंग एट द सरफेस, दैट इज अट्रैक्टेड मोर बाय द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द बल्क ऑफ लिक्विड देन बाय द मॉलिक्यूल्स लाइंग अबव इट इन द वेपर फेज। यहाँ पे वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनसे ज्यादा ये वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा बजाय कि इसके, क्योंकि इसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। और इसी नेट इनवर्ड अट्रैक्शन को जो कि मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्सपीरियंस करते हैं, कौन से वाले मॉलिक्यूल? जो कि सरफेस पे हैं, दे जस्ट एक्सपीरियंस दिस नेट वो इनवर्ड अट्रैक्शन, अंदर की साइड का अट्रैक्शन सिर्फ ये करते हैं, ड्यू टू विच दिस इनवर्ड पुल ऑन ऑल मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग ऑन द surface. At the surface behaves as it were under tension. ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करती है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, और इसी नेट इनवर्ड अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं. सो इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस. क्लियर है बच्चे? इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? क्योंकि फोर्स एक्टिंग है पर यूनिट लेंथ पे हो रहा है, तो फोर्स की यूनिट डाइन या न्यूटन है, एसआई यूनिट न्यूटन है, और लेंथ पर सेंटीमीटर लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ है तो सेंटीमीटर और मीटर. सो सरफेस टेंशन यूनिट इज न्यूटन पर मीटर. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, तो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप. रेन ड्रॉप को आपने देखा होगा, वो स्फेरिकल शेप ले लेती है. क्यों? बिकॉज रेन ड्रॉप्स ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर द मिनिमम सरफेस एरिया, एंड ऑल ऑफ यू नो कि स्फेरिकल शेप टेक्स या acquire the minimum surface area. That's why that usually the drops are what? Drops are spherical in shape. ठीक है, बबल्स ऑफ गैस होते हैं वो भी स्फेरिकल होते हैं, तो यही चीज है. नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशन फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास. ना दिस शार्प ग्लास एजेस आपने देखी होंगी, तो उनको स्मूथ करने के लिए उनको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है. हीटिंग करने से क्या होता है कि ग्लास मेल्ट होता है और धीरे धीरे अपने को राउंड शेप ले लेता है. ठीक है, सो ग्लास इज आफ्टर मेल्टिंग स्टार्ट टेकिंग द राउंडेड शेप एट द एजेस which has the minimum surface area, and this phenomena is known as fire polishing of glass. Another one very important application is rise of a liquid in a capillary tube. ये तो आपने सबने देखा होगा, लाइक थर्मामीटर के अंदर मरकरी टेम्परेचर लेते ही ऊपर चढ़ता है, वो कैपिलरी एक्शन है आपका. ठीक है, और अगर आपने कैपिलरी ट्यूब को अगर लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, कैपिलरी ट्यूब इज अ वेरी वेरी नैरो ट्यूब ऑफ अ ग्लास, और अगर उसको लिक्विड में डाल देते हो तो आप अगर उसको देखो तो उसकी सरफेस जो होती है ग्लास की सरफेस, दैट स्टार्ट्स वेटिंग. सो व्हाई? बिकॉज द लिक्विड स्टार्ट राइजिंग इन द capillary tube to a certain height, and the same one phenomena, capillary action ही जो है
इज यूज्ड टू कह सकते हैं कि टू सेंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम और द लीव्स। तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही सॉयल से पानी जो है प्लांट्स में पहुंचता है। तो दिस इज अनदर वन एक्शन और एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। द लास्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज विस्कोसिटी। ठीक है ना, विस्कोसिटी इज व्हाट, हमें सबको मालूम है कि लिक्विड जो होते हैं, सारे लिक्विड्स की जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है या स्पीड है वो सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे कि कुछ लिक्विड है, वाटर है, ईथर है, अल्कोहल है, वो बहुत जल्दी फ्लो करेंगे। वेयर एज लिक्विड जैसे ग्लिसरीन है या कैस्टर ऑयल है या ऑयल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे स्लोली फ्लो। तो वाई, because every liquid has some internal resistance to flow, and that internal resistance to flow possessed by liquid is known as viscosity. इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर? तो होता ये है कि जब बहुत सारे पार्ट्स ऑफ लिक्विड्स हैं, इस तरीके से एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, बहुत सारी लिक्विड्स की लेयर्स हैं, और उन लेयर्स में लिक्विड्स की जो है सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे। तो जब वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि जो आपका लिक्विड जो सबसे बाहर वाला होगा उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उससे नीचे वाले में थोड़ा सा ज्यादा होगा, उससे नीचे वाले में और ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे ये सारा टाइप ऑफ फ्लो जिसे कहते हैं, जो कि रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी कर रहा है फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज नोन एज लैमिनर फ्लो। एंड वी कैन से दैट कि अगर सिंपली हम लेयर्स की बात कर रहे हैं तो सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ लेयर्स में आएंगे तो वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी लेयर्स की, दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। या ये कह लें कि हर लेयर जो है वो दूसरी लेयर पर जो कि उसके इमीडिएटली नीचे है उसके ऊपर क्या लगाती है, रेजिस्टेंस लगाती है। और इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को विच वन पार्ट ऑफ द लिक्विड ऑफर्स टू अनदर पार्ट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, सो फोर्स इज नथिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to area into velocity gradient. Proportionality constant को is equal to say proportionality constant eta. Eta is known as here coefficient of viscosity, which is defined as the force of friction required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layers. 1 centimeter apart, 1 centimeter apart, and each having an area of कितना, 1 square centimeter. ठीक है, तो यहां से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ईटा की, दैट इज डाइन सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 1 poise, and its SI unit is Newton second per meter square or Pascal second. ठीक है बच्चे, so this is all about your different characteristics of liquids. Okay, so thank you to all of you.